हेलो बेटा, आवाज आ रही सबको? यस सर, वालेकुम सलाम। चलो ठीक है। तुमसे गिफ्ट कैसे एक्सचेंज? तुमने मेरा गिफ्ट उसको दे दिया और उसको जिससे बात ये दूसरे जैसे भी मुझे नहीं होगा हरामी के Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic for the discussion is the anchorage. Now in the orthodontic, for movement of the tooth to achieve the different type of the movements, we apply the force. And according to the Newton's third law of the motion, that every action has a reactionary force. So it means if we apply a 50-gram force on the anterior teeth with the help of the posterior teeth by supporting the posterior teeth, so definitely exactly 50-gram force will also be applied on the posterior teeth. So our aim is to move the anterior teeth, and the stability or the support of the posterior teeth is less. And if we apply a 50-gram force rather than movement of the anterior teeth, sometimes what happens, there is a movement of the posterior teeth. So it means the anchorage loss. So anchorage is basically the support or the area from where we get the support to move the teeth. The content of this presentation is the definition, types, classification, principles of the anchorage, then determinants of the anchorage value, and the methods that can reinforce the anchorage. Anchorage, it is the resistance to the displacement, and it obeys the Newton's third law of motion. To every action there is an equal and the opposite reaction. Each orthodontic appliance consists of the two elements, anchor unit and the moving unit. Both in the fixed appliances and the removable appliances, or even in the functional appliance, there are the two components, the anchor unit and the moving unit. Moving unit is the unit जिसकी हम मूवमेंट कराना चाह रहे हैं, जिसको हम मूव कराना चाह रहे हैं. सपोज कि हम मूवमेंट कराना चाह रहे हैं एंटीरियर टीथ की इंसाइजर्स की, एंड जो हम एंकर यूनिट है, जो सपोर्ट ले रहे हैं, दैट इज द मोलर. सपोज करिए ये दो कंपोनेंट हैं, एंटीरियर टीथ है एंड द पोस्टीरियर टीथ है. Anterior teeth means from canine to canine, and posterior teeth means premolar to the first molar or the second molar. So the anterior teeth will be the moving unit, and the posterior teeth, they are the anchor unit. अगर ये रिमूवेबल अप्लायंस भी है, सपोज हम रिमूवेबल अप्लायंस में हॉलेज अप्लायंस दे रहे हैं, and we are applying the force to move the anterior teeth, तो हम posterior teeth से और जो आपका प्लेट होती है उससे हम क्या ले रहे होते हैं, एंकरेज ले रहे होते हैं, तो सपोर्ट ले रहे होते हैं. So in each orthodontic appliance, that they are consist of the two components, the anchor unit and the moving unit. Now it depend on case to case कि हमें मूविंग यूनिट की कितनी मूवमेंट करानी है, और एंकर यूनिट को इधर we have to keep the anchor unit stable, or we want any movement of the anchor unit. Suppose sometimes what happens, if we have a space of 10 millimeter, but we have to move the anterior teeth only 6 millimeter. Suppose हम 6 millimeter anterior teeth को move करना चाह रहे हैं, and the remaining space will be closed by moving the anchor unit. So in this there is a movement of both the anterior teeth as well as the posterior teeth. In certain malocclusions, suppose we have in the 10 millimeter space, and we have in that 10 millimeter space we have to move only the anterior teeth,
we does not want any movement of the anchor unit. This is another type of the condition in which the maximum movement of the and this moving unit is required. ये हम आगे पढ़ेंगे classification of anchorage में कि how we classify the anchorage and हम फिर कैसे जो है वो इसको implement करते हैं in the clinical presentation. Anchor unit and the moving unit, they are the two elements present in the each orthodontic appliance. Okay, then the type of anchorage, they are basically classified into the two groups: intraoral anchorage and the extraoral anchorage. Intraoral anchorage means anchorage that is within the oral cavity, that is further classified into two groups: intramaxillary and the intermaxillary. Intramaxillary means within the same arch, and intermaxillary means from the opposite arch. Now suppose पहले मैं इंटरमैक्सिलरी का बता दूं ताकि आपको इंट्रामैक्सिलरी इजीली समझ आएगा. तो इंटरमैक्सिलरी का मतलब है कि दूसरी आर्च जो अपोजिट आर्च होती है उससे हम एंकरेज लेते हैं. Suppose we have to move upper anterior teeth and the posterior teeth they are missing. Posterior कोई उसमें teeth है ही नहीं मतलब. और लोअर आर्च जो है वो स्टेबल है, हम लोअर आर्च से एंकरेज ले सकते हैं. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपर टीथ पे ब्रैकेट लगाए, लोअर टीथ पे भी ब्रैकेट लगाए, एंड वी विल यूज द इलास्टिक्स. इंटरमैक्सिलरी जो इलास्टिक्स होते हैं, क्लास 2 इलास्टिक्स आर द क्लास 3 इलास्टिक्स, डिपेंड आपको कौन सी मूवमेंट चाहिए, अपर टीथ मूव कराने या लोअर कराने, तो वी कैन यूज द इलास्टिक्स. Suppose if we are using the class 2 elastics, they are given from the maxillary canine to the mandibular molar. तो उसमें क्या होगा कि जो mandibular molar है, it will basically provide the anchorage. अच्छा, अब लोअर आर्च में क्या है, that is not only the molar, but जो लोअर सारे टीथ होंगे ना, from first molar to the first molar, जो लोअर आपके anterior जो है वो 10 or 12 जो टीथ होंगे, basically they will provide the anchorage. So that is an example of the intermaxillary anchorage. And intramaxillary means within the arch. Suppose we have to move the canine posteriorly, हमें canine को retract करना है, canine को posteriorly move करना है, so we can get the anchorage from the first molar. हमने anchorage की requirement को और बढ़ाना है. अगर suppose करें कि हम चाहते हैं कि anchorage की value को और increase करें, we can incorporate the second molar with the first molar. हम सेकंड मोलर पे भी मोलर बैंड लगा दें और उसको भी हम एंगेज कर दें विद द फर्स्ट मोलर, तो पोस्टीरियर आपके दो मोलर हो जाएंगे और हम जो मूवमेंट कराना चाह रहे हैं दैट इज द ओनली कैनाइन. So this is an example of the intramaxillary anchorage. The intramaxillary anchorage is further classified into the simple anchorage, stationary anchorage and the reciprocal anchorage. तो अब simple anchorage क्या होता है, that is resistance to the tipping. अच्छा, अगर सपोज करें जो टाइप ऑफ द टूथ मूवमेंट है, ठीक है, अगर हम टिपिंग मूवमेंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस पे डेफिनेटली जो अमाउंट ऑफ द फोर्स होगा वो भी कम होगा. तो जो एंकरेज की वैल्यू होगी, क्योंकि एंकरेज की डिमांड बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतनी एंकरेज की वैल्यू बढ़ेगी. यहाँ पर अगर आप 30 ग्राम फोर्स लगा रहे हैं तो जो आपको एंकर यूनिट होगा उस पे भी रिएक्शनरी 30 ग्राम फोर्स जाएगा. अगर हम 100 ग्राम फोर्स लगा रहे हैं तो जो एंकर यूनिट होगा उस पे भी 100 ग्राम फोर्स जाएगा. तो एंकरेज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ द फोर्स, एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द टूथ मूवमेंट. तो सिंपल एंकरेज इट इज रेजिस्टेंस टू द टिपिंग मूवमेंट, एंड देन स्टेशनरी एंकरेज इट इज रेजिस्टेंस टू द बॉडीली मूवमेंट. अगर बॉडीली मूवमेंट हम टूथ की कराना चाह रहे हैं एंड जो है वो फोर्स जो है हम ज्यादा लगाते हैं, दैट इज 100 ग्राम और 70 ग्राम फोर्स, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस टू दैट बॉडीली टूथ मूवमेंट. देन द रेसिप्रोकल एंकरेज. रेसिप्रोकल एंकरेज क्या होता है, especially in the cases of the midline diastema, if there is any spaces in the anterior teeth or the between the central incisor, and we have to move both central incisor in one direction. Suppose अगर
राइट सेंट्रल इंसाइजर भी हम मीजियली मूव करना चाह रहे हैं और लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर भी मीजियली मूव करना चाह रहे हैं, तो इसमें वी विल अप्लाई द रेसिप्रोकल एंक्रेज. रेसिप्रोकल मींस टू और द मोर टीथ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो राइट सेंट्रल है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और लेफ्ट जो है वो राइट की तरफ करेगा. So for both teeth equal amount of the force is required. Suppose हम 50 ग्राम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट सेंट्रल पे, so that 50 ग्राम will apply a reactionary 50 ग्राम force on the left central incisor. तो वो दोनों मूव करेंगे in one direct opposite direction. That is known as the reciprocal anchorage. Then simple anchorage is further classified into the single, compound, and the reinforced. So simple and single anchorage means we are getting the anchorage from a single tooth. Compound means we have engaged two or the more teeth. Reinforced anchorage means we have incorporated some appliance to reinforce the anchorage. Then extraoral anchorage means anchorage that is we are getting from outside the oral cavity. That is the cervical anchorage, occipital anchorage, cranial anchorage, and the facial anchorage. Then anchorage, they are also classified according to the space availability into the minimum anchorage, moderate anchorage, maximum anchorage, and the absolute anchorage. According to the fourth, simple anchorage means resistance to the tipping. Stationary, it is resistance to the bodily movement. And the reciprocal means resistance to each other in equal and the opposite direction. According to the jaw involved, intramaxillary means anchorage established in the same jaw, in the same arch. An example of the intramaxillary anchorage ये है कि आप कोई एक particular tooth involve करें. If we want to reinforce the anchorage, we can incorporate the TPA, transpalatal arch. We can also incorporate the lingual arch in the lower. We can also incorporate the TPA lens. And the intramaxillary anchorage means anchorage that is distributed to both jaws. जो elastics हम use करते हैं, the class 2 elastics are the class 3 elastics. It is an example of the intermaxillary anchorage. Then according to the site involved, intraoral anchorage, then extraoral. Extraoral में जो cervical headgear है, example of the cervical headgear is the low pull headgear. जो हम headgear use करते हैं, headgear to restrain the growth of the maxilla. जो headgear के types थे cervical pull, occipital pull, high pull headgear जो थे, तो the cervical pull headgear it's that provides the anchorage from the cervical region. Then the anchorage from the occipital region, that is the medial pull headgear. From the cranial region, that is the high pull headgear. जो facial से हम anchorage लेते हैं, the example is the chin cup and the face mask. And then the muscular anchorage, that is the vestibular shields. This is the transpalatal arch that is used to reinforce the anchorage. Now suppose कि हमने canine की retraction करनी है posterior direction में, तो सपोज करें कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसपैरेंटल आर्च ना हो और ये मोलर सेपरेट हो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम 50 ग्राम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं केनाइन पे टू मूव द केनाइन पोस्टीरियरली, उसको रिट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो 50 ग्राम रिएक्शनरी फोर्स होगा ऑन द मोलर. तो सपोज करें कि जो मोलर है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, the molar can bear a force up to 100 gram, तो वो resist करेगा 50 ग्राम को, and molar will not move anterior, but क्या होगा कि आपका canine posterior move करेगा. सपोज करें कि हम anterior teeth जो है, anterior 6 teeth या anterior 4 जो है incisors, उनको हम move करना चाह रहे हैं. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हम reinforce करते हैं ना, ये transpalatal arch देने से क्या होगा, इंडिविजुअल जो मोलर होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, बट हम जब दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे विद दिस वायर, दिस इज हेवी वायर, 0.9 mm की वायर ये होती है, जब हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो डेफिनेटली इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. तो द ट्रांसपैरेंटल आर्च इज वन एग्जांपल टू रीइंफोर्स द एंकरेज.
In the lower arch, the same the lingual arch is used to reinforce the anchorage. हम दो यूनिट जो है वो दो टीथ को कंबाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी स्ट्रेंथ जो वैल्यू है, अगर एक इंडिविजुअल मोलर की सपोज करें कि जो रूट सरफेस एरिया एंड वैल्यू जो है वो 100 हो, तो दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो 200 हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो ज्यादा फोर्स को रेजिस्ट कर सकेगी। लिप बम्पर, ठीक है, लिप बम्पर इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ द मस्कुलर एंकरेज, ठीक है, इसमें क्या है, ये दो मोलर्स इन्वॉल्व, ठीक है, एंड दिस इज ए वेस्टिबुलर शील्ड, ये क्या करती है कि जो लोअर आपका लिप होता है उसको एंटीरियर पोजीशन में रखती है, सो द प्रेशर ऑफ द लोअर लिप क्या करता है, इट रेजिस्ट द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द मोलर, तो उसकी सपोर्ट से हम जो है कैनाइन और एंटीरियर टीथ जो है उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं। Lip bumper again in the lower arch. This is in a higher pull headgear. Now suppose we have to either distalize the molar, we have to restrain the growth of the maxilla, तो हम क्या देते हैं, हेडगियर देते हैं। अब ये हेडगियर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे, तो ये तो इलास्टिक है ना, यहाँ पे ये इलास्टिक फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये फोर्स डायरेक्टली जा रहा है मैक्सिला पे। इस जो फोर्स जो मैक्सिला पे फोर्स जा रहा है उसका रिएक्शनरी फोर्स कहाँ जाएगा, दैट इज ऑन द ऑक्सीपिटल रीजन। दिस इज द एरिया जो कि आपको बेसिकली एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इलास्टिक है, ये इलास्टिक जो है वो इस वायर पे फोर्स अप्लाई करेगा जो कि मैक्सिला पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसका रिएक्शनरी फोर्स डेफिनेटली पोस्टीरियर जाएगा और वो जाएगा ऑन द रीजन ऑफ द एंकरेज, और ये वो रीजन है जहां से हम हेडगियर में एंकरेज ले रहे हैं। स्ट्रेट पुल हेडगियर, इसमें एंकरेज हम ले रहे हैं फ्रॉम द ऑक्सीपिटल रीजन एंड द सर्वाइकल रीजन, इन दोनों जगहों से बेसिकली, तो इसमें एंकरेज वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ऑक्सीपिटल पुल हेडगियर। दिस इज द सर्वाइकल हेडगियर, ये बेसिकली के अगेन ये इलास्टिक अगर यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है, तो सर्वाइकल रीजन पे बेसिकली रिएक्शनरी फोर्स जाएगा, प्रेशर जाएगा, और जो इसका रिएक्शनरी इफेक्ट होता है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेड गियर या जो डिफरेंट रीजन्स हम एनकरेज लेते हैं, दैट आर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि हमने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसाइड करके कि ऑक्सीपिटल पुल देना है, सर्वाइकल पुल देना है या हाई पुल हेड गियर देना है, डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशन। नाउ द फेस मास्क दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मैक्सिला, जो क्लास 3 मालाक्टोजन होती है, इन दैट द मैक्सिला इज डेफिशिएंट, मैक्सिला की ग्रोथ कम होती है, तो टू इनहांस द ग्रोथ ऑफ द मैक्सिला हम क्या करते हैं, फेस मास्क देते हैं, मतलब, ठीक है, दिस इज एन फेस मास्क, ठीक है। अच्छा, अब फेस मास्क में क्या होता है कि यहाँ पे इलास्टिक्स होते हैं, यहाँ पे इलास्टिक होते हैं जो कि इंट्राओरल जाके मोलर पे अटैच करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये जो इलास्टिक होंगे मोलर पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इनका रिएक्शनरी फोर्स कहाँ जाएगा, रिएक्शनरी फोर्स विल गो ऑन द फोरहेड एंड द चिन, क्योंकि ये दो जगह हैं जो कि एनकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये वायर दोनों ये कनेक्ट है ना आपस में, तो जो इस वायर पे फोर्स आएगा, रिएक्शनरी फोर्स, वो ट्रांसमिट होगा टू द चिन एंड द फोरहेड। सो बेसिकली ये जो दो रीजन है, दे आर द एनकरेज रीजन फॉर द फेस मास्क। इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक्स, क्लास 2 इलास्टिक्स वी आर यूजिंग, सपोज करें कि ये हमने मैक्सिलरी कैनाइन है उनको नीचे करना है, तो वी आर यूजिंग द क्लास 2 इलास्टिक्स, ये हमने मोलर में लिया, ठीक। अब आप इसमें देखें कि लोअर जो है वो टोटल पूरी आर्च जो है वो एनकरेज प्रोवाइड करेगा, कैनाइन पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इलास्टिक, द रिएक्शनरी फोर्स विल गो ऑन द मोलर, मोलर के साथ अटैच है प्रीमोलर, प्रीमोलर के साथ फर्स्ट प्रीमोलर कैनाइन, तो क्या होगा कि ये फोर्स इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन ऑल द टीथ, तो द लोअर टीथ की मूवमेंट नहीं होगी बट आपका कैनाइन मूव करेगा, क्योंकि लोअर में वो फोर्स इतना मिनिमाइज हो जाता है जब सब टीथ पे जाएगा। सपोज 100 ग्राम फोर्स इज ऑन द कैनाइन एंड जो उसका रिएक्शनरी फोर्स है दैट इज आल्सो 100 ग्राम, तो वो 100 ग्राम फोर्स इक्वली डिवाइड हो जाएगा ऑन द 10 टीथ, तो वो आप ये समझ लें कि 10 ग्राम पर टूथ जाएगा, तो वो लोअर टीथ की मूवमेंट नहीं होगी बट ओनली द कैनाइन विल मूव। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास 3, ये लोअर आर्च में ये क्लास 3 इलास्टिक्स हम दे रहे हैं। ओके, नाउअडेज
ये जो आपके एक्स्ट्रा ओरल अप्लायंसेज हैं like headgear, cervical headgear, straight pull headgear या high pull headgear, they are difficult to wear for the patient. ये हम पहले यूज होते थे जब इम्प्लांट्स नहीं थे, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होते थे टू रीइंफोर्स द एनकरेज, बट नाउअडेज जो in the modification or the advancement in the anchorage in the orthodontics, that is the mini implants. Mini implants क्या होते हैं? They are basically the titanium screws. We place the titanium screws in the interdental area. कोई भी लोकेशन हो सकती है. Most commonly जब हमने anterior teeth को posteriorly move करना होता है, तो we place the implant in the interdental area between the जो है सेकंड प्रीमोलर एंड द फर्स्ट मोलर, ठीक है, वहां पे हम ये प्लेस करेंगे. तो इसमें मैकेनिकल रिटेंशन होती है, मतलब इट्स लाइक एन स्क्रू. जैसे प्रोस्थेटिक में जो आप इम्प्लांट यूज करते हैं उसमें क्या होता है, वो ओसियो इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब तो वो बोन के साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब. बट द ऑर्थोडोंटिक मिनी इम्प्लांट डज नॉट ओसियो इंटीग्रेट, क्योंकि ये SLE ट्रीटेड नहीं होता, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल रिटेंशन होती है. हम इंटरडेंटल एरिया में आप कॉर्टिकल प्लेट में जब हम इसको एंगेज करेंगे, ठीक है, तो मैकेनिकल रिटेंशन प्रोवाइड करेगा एंड वी कैन यूज दिस इम्प्लांट और हम टीथ को मूव कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांट बेसिकली इज प्लेस्ड विद इन द बोन, ठीक है. तो जब हम फोर्स लगाते हैं द इम्प्लांट, तो इम्प्लांट की कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, तो वो टूथ पे कोई फोर्स नहीं है, दैट इज फोर्स इज ऑन द इम्प्लांट. इसलिए हम एट ए टाइम सारे टीथ को मूव कर सकते हैं. जब ये हमारा स्पेस क्लोज हो जाए और एंकरेज की डिमांड जो है वो खत्म हो जाए, तो वी विल रिमूव द इम्प्लांट. दिस इज द एडवांसमेंट इन द एंकरेज कि आप मिनी इम्प्लांट्स यूज कर लें एंड आफ्टर मूविंग द टूथ वे अगेन जो है वो हम मिनी जो इम्प्लांट्स होंगे उनको हम रिमूव कर लेंगे. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, anchorage is classified into single or the primary anchorage that is involving one teeth, compound anchorage involving two or the more teeth, and reinforced anchorage means addition of the non-dental anchorage. Like suppose अगर हम maxilla में ट्रांसपैलेटल आर्च दे दें तो वो reinforced anchorage हो जाएगा. मैंडिबल में हम lingual arch दे दें, that is an example of the reinforced anchorage. According to the space available, they are classified into minimum anchorage, moderate anchorage, maximum anchorage, and the absolute anchorage. Minimum anchorage are the cases in which 2/3 space will be utilized by the movement of the anchor unit. Suppose we have a 10 millimeter space, so 3-4 millimeter space will be utilized by the moving unit, and the remaining जो आपका 6-7 millimeter space होगा, that will be utilized by the anchor unit. क्योंकि इसमें एंकरेज की इतनी डिमांड नहीं है ना, वेरी मिनिमम एंकरेज कि आपका जितना भी स्पेस है आप एंटीरियर टीथ की सपोज आप मूवमेंट कर रहे हैं वो कम करेंगे, बाकी आप एंकर यूनिट को मूवमेंट करवा देंगे. मॉडरेट एंकरेज मींस 50-50, 50% मूवमेंट ऑफ द एंकर यूनिट एंड 50% मूवमेंट ऑफ द मूविंग यूनिट. मैक्सिमम एंकरेज क्या होता है, दैट इज द 1/3 स्पेस यूटिलाइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द एंकर यूनिट, and your 2/3 होगा, that is the movement of the moving unit. And then the absolute anchorage means absolutely no movement of the anchor unit. कि आपका पास सपोज करें जितना भी स्पेस है 5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर, 100% there should be the movement of the moving unit. Anchor unit की 1 मिलीमीटर भी movement इसमें required नहीं है. So that is in a case of the absolute anchorage. Now at the time of the treatment planning, suppose हमारे पास जब भी पेशेंट आता है, जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, at the time of the treatment planning हम प्लान करते हैं कि this case is in a minimum anchorage case, moderate anchorage case, maximum anchorage case or the absolute anchorage case. Suppose हम अगर उसमें लिखते हैं कि this case is in a absolute anchorage case, तो ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि इस पेशेंट में हमने इम्प्लांट यूज करने हैं फॉर द रिट्रैक्शन पर्पस. Suppose if it is in a maximum anchorage case, तो हम उसमें क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे, TPA और the TPA nails. Moderate anchorage case तो हम उसमें कोई इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, it's in a 50-50 movement of the anterior teeth and the posterior teeth. तो आप ये कह सकते हैं कि in the moderate anchorage case basically हम reciprocal जो forces होते हैं
वो अप्लाई करते हैं ताकि एंटीरियर टीथ भी मूव करे और पोस्टीरियर टीथ भी मूव। एंड मिनिमम एंकरेज केस में भी अगेन एग्जैक्टली यही होता है कि आप एंटीरियर टीथ की मूवमेंट या मूविंग यूनिट की मूवमेंट कम होगी और एंकर यूनिट की मूवमेंट ज्यादा होगी। These are the two terms that are commonly used. Number one is the anchorage loss. Number two is the anchorage burn. Anchorage loss क्या होता है? That is unintentional movement of the anchor unit. Anchorage burn is the intentional movement of the anchor unit. Now suppose there is a case of absolute anchorage and हमारे पास जो space available था for the movement of the moving unit was 10 millimeter. During the movement what happened कि हमने मूवमेंट की एंटीरियर टीथ की बट कोई हम मैकेनिक्स प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सके या सपोज करें हमने इम्प्लांट यूज नहीं कर सके, ठीक है, फॉर एनी रीजन क्या हुआ कि पोस्टीरियर टीथ की भी मूवमेंट हो गई इन दैट स्पेस। जो हमारे पास 10 मिलीमीटर स्पेस था, हमने 10 मिलीमीटर में मूवमेंट करनी थी एंटीरियर टीथ की, तो उसमें से एंटीरियर टीथ मूव किए 8 मिलीमीटर एंड रिमेनिंग 2 मिलीमीटर जो है वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम पोस्टीरियर टीथ आगे मूव, उनकी मूवमेंट हो गई इन द एंटीरियर डायरेक्शन, वो इस स्पेस में आ गए। उस कंडीशन को कहेंगे एंकरेज लॉस, क्योंकि ये अनइंटेंशनल था, हम नहीं चाह रहे थे कि मोलर आगे आए या पोस्टीरियर टीथ आगे मूव करे, बट अनइंटेंशनली जो है वो उसकी मूवमेंट हो गई, दैट इज नोन एज एंकरेज लॉस। एंकरेज बर्न क्या होता है? दैट इज इंटेंशनल मूवमेंट ऑफ द एंकर यूनिट। ये जितनी भी कंडीशन है ऑफ द मिनिमम एंकरेज, मॉडरेट एंकरेज एंड द मैक्सिमम एंकरेज, इन ऑल दीज कंडीशंस द एंकर यूनिट विल मूव इनटू द स्पेस एंड वो हम इंटेंशनली करवाएंगे, हम खुद मूव करवाएंगे अंदर। दैट कंडीशन इज नोन एज द एंकरेज बर्न। Okay. Principles of anchorage. First principle is that a tooth with a large root surface area has a greater anchorage value than with a small root surface area. जैसे आप ऑर्थोडोंटिक्स में करते हैं ना कि अबटमेंट हम बनाएंगे, किसको अबटमेंट बनाएंगे, जिसका रूट सरफेस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अबटमेंट होगा अंदर। तो इसमें भी ये है कि जिसका रूट सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसका जो है वो पेरिडोंटियम हेल्दी होगा, दैट विल प्रोवाइड अ बेटर एंकरेज। Tooth which is free to tip has less anchorage value than a tooth which is restricted in tipping by the application of a force cover. Now suppose anterior हम teeth posterior move करना चाह रहे हैं, तो हम biology of tooth में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि effect of the heavy force। हमने कहा कि जब heavy force होगा उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि टूथ जो मूवमेंट होती है वो डिले हो जाती है, ठीक है। टूथ मूवमेंट डिले क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द हाइलिनाइजेशन। नाउ सपोज हमने कैनाइन की मूवमेंट करानी है इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन और हमने एनकरेज लिया है फ्रॉम द फर्स्ट मोलर। वी हैव अप्लाइड एन एक्सेसिव फोर्स ऑन द कैनाइन, ठीक है। कितना फोर्स लगाया? सपोज फोर्स हमने अप्लाई करना था 70 ग्राम टू 100 ग्राम एंड वी हैव एन अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 120 ग्राम। हम ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई करें, क्या होगा कि जो 120 ग्राम फोर्स अप्लाई होगा ऑन द कैनाइन, उसका रिएक्शनरी फोर्स होगा ऑन द मोलर और वो कितना होगा? वो भी 120 ग्राम होगा। दैट 120 ग्राम फोर्स इज अ हेवी फोर्स फॉर द कैनाइन, क्योंकि वो सिंगल रूटेड है, अल्दो उसकी लॉन्ग रूट है, बट दैट 120 ग्राम फोर्स इज एन हेवी फोर्स फॉर द कैनाइन। और जो उसका रिएक्शनरी फोर्स मोलर पे गया, दैट 120 ग्राम फोर्स इज एन ऑप्टिमम फोर्स फॉर द मोलर। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? कैनाइन की मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। उसकी मूवमेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां तो हाइलिनाइजेशन हो गई है, मूवमेंट उसकी डिले हो जाएगी 2 हफ्ते के लिए। तो क्या होगा कि आपका जो मोलर जिसपे ऑप्टिमम फोर्स जो रिएक्शनरी फोर्स लगा है, तो मोलर की मूवमेंट शुरू हो जाती है। और वो जब पेशेंट आता है दूसरे विजिट पे, हमें लगता है कि जी स्पेस तो क्लोज हो रहा है, मतलब फिर ये कैनाइन पोस्टीरियर क्यों नहीं जा रहा? मतलब तो हम समझते हैं कि नहीं जी कैनाइन पोस्टीरियर जा रहा है, उसके साथ साथ शायद एंटीरियर की मूवमेंट हो रही है। बट द बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है
केनाइन अपनी पोजीशन से नहीं मूव हो रहा होता, पोस्टीरियर टीथ मूव कर रहे होते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द हेवी प्रेशर हार्नेस एरिया. उस कंडीशन, क्योंकि जो 120 ग्राम फोर्स सपोज के मोलर एंड प्री मोलर पे जो हो रहा है वो उस टीथ की टिपिंग कर रहा था. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मतलब जहाँ पे हमें हो के चांसेस हो सकते हैं कि एंकरेज लॉस हो, तो हम फोर्स ऐसे डिजाइन करते हैं या मैकेनिक्स हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि इफ वी अप्लाई अ प्रेशर ऑन द केनाइन, तो केनाइन की टिपिंग मूवमेंट हो एंड जो आपका मोलर हो उसकी बॉडीली मूवमेंट हो. सपोज हम 100 ग्राम फोर्स दे रहे हैं जो कि केनाइन की मूवमेंट करा रहा है, टिपिंग मूवमेंट करा रहा है उसकी. फॉर एग्जांपल मोलर पे हम जो मैकेनिक्स रखेंगे वो इस तरह रखेंगे, तो वो जो रिएक्शनरी फोर्स जाएगा ऑन द मोलर, पहली चीज के मोलर मूव ना करे. इफ देयर इज एनी मूवमेंट ऑफ द मोलर तो वो बॉडीली मूव करे. तो हम वायर मैकेनिक्स, वायर में हम ऐसे बैंडिंग्स देते हैं, ऐसा बैंड दे देंगे जिससे उसकी मूवमेंट जो कपल उस पर फोर्स अप्लाई हो जाए. तो क्या होगा कि वो जो 70 ग्राम फोर्स है या 100 ग्राम फोर्स विच इज एन हेवी प्रेशर फॉर द केनाइन, एंड हम कह रहे हैं वो ऑप्टिमम फोर्स है फॉर द मोलर, बट दैट विल बी एन ऑप्टिमम फोर्स फॉर द टिपिंग मूवमेंट. वो फोर्स बॉडीली मूवमेंट के लिए ऑप्टिमम नहीं होगा. तो उससे क्या होता है कि उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो वी कैन सेव द एंकरेज. बेसिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एंकरेज वैल्यू, हम कैसे असेस करेंगे कि कितनी एंकरेज वैल्यू है? डिपेंड ऑन द फोर्स मैग्नीट्यूड, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द पीडीएल एरिया, रूट मॉर्फोलॉजी, स्पेस अवेलेबल एंड द नाइबरिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, जो एंकरेज डिमांड होती है इन द मैग्जिला इज मोर एज कंपेयर टू द मैंडिबल. व्हाई? अच्छा, वो इसका रीजन ये होता है, एक तो मूवमेंट ऑफ द जो मैग्जिलरी मोलर होती है वो इजी होती है एज कंपेयर टू द मैंडिबुलर मोलर. इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो मैग्जिलरी मोलर्स होते हैं, जब हम उस पर बक्कल साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं, वो मैग्जिलरी मोलर रोटेट्स ऑन द पैलेटल रूट, और पैलेटल रूट पे रोटेट कर जाता है और एंकरेज लॉस हो जाता है. मैंडिबल में क्या होता है, देयर आर द टू रूट्स, मीजियल एंड द डिस्टल. उसमें कैंसरस बोन मैंडिबल में कम होता है एज कंपेयर टू द मैग्जिला. तो मैंडिबुलर मोलर की मूवमेंट कम होती है एज कंपेयर टू द मैग्जिला. इसीलिए हमने मैग्जिला में जो एंकरेज है उनको ज्यादा रीइंफोर्स करना होता है एज कंपेयर टू द मैंडिबल. एंकरेज वैल्यू कैन बी इम्प्रूव्ड और कैन बी रीइंफोर्स्ड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजुअली आपके शॉर्ट ऐसे में आता है. व्हाट आर द फैक्टर्स इन व्हिच वी कैन व्हिच कैन रीइंफोर्स द एंकरेज, कि हम एंकरेज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करें. तो कैसे कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेट्स एज मेनी टीथ एज पॉसिबल इन द एंकरेज यूनिट. कि एंकरेज यूनिट ऑफ टीथ बढ़ा दें. सपोज हम एंटीरियर टीथ की मूवमेंट कराना चाह रहे हैं, तो पोस्टीरियर में हम प्रीमोलर को भी इंगेज करें, मोलर को भी करें, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर को भी कर लें. तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं हम एंकर यूनिट बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि उस पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. reduce number of teeth in the moving unit, use of anchorage bands, reduce the force applied to the optimal for producing the required tooth movement. Optimal force apply करें, हम कभी भी heavy force apply नहीं करेंगे. Reinforce intraoral anchorage with extraoral anchorage, means extraoral appliances use करें. Use of palatal or the lingual arch, use of intraoral intra or intermaxillary elastics, use of lip bumper, and the cortical anchorage means use of the implants. Okay, anchorage to be considered in all the three plane of space. ये यूजुअली जनरल प्रैक्टिशनर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जो एंकरेज होगा वो सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगा. मतलब हमने एंटीरियर टीथ को पोस्टीरियरली मूव करना है, तो हमने पोस्टीरियर एंकरेज को जो है वो रीइंफोर्स करना है. बट एंकरेज प्लानिंग विल ऑल बी इन द 3 डायमेंशन. सपोज हम वर्टिकल मूवमेंट कराना चाह रहे हैं, इंट्रूजन या एक्सट्रूजन कराना चाह रहे हैं. अगर हम एक टीथ की इंट्रूजन कराएंगे
तो जो उसका रिएक्शनरी फोर्स होगा उस दांत पे जहां से हम सपोर्ट ले रहे हैं उसकी एक्सट्रूजन कराएगा। ट्रांसवर्स प्लेन में सपोज कि अगर हम एक टीथ को बक्कली मूव कराना चाह रहे हैं तो उसका रिएक्शनरी फोर्स ऑन द अदर टीथ जो होगा वो क्या करेगा, उसको लिंगुअली मूव कराएगा। So we have to plan the anchorage in all the 3 dimensions. कि एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान में तो हम डिस्कस भी करते हैं और उसका प्लान भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में जो वर्टिकल प्लान है या इन द ट्रांसवर्स प्लान में वो जो है वो प्लानिंग नहीं की जाती है। जैसे एंकरेज लॉस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ एंकर यूनिट इन द एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान। इन द वर्टिकल क्या होगा, एंकरेज लॉस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रूजन ऑफ मोलर्स or tip back of molars, so care must be taken when planning to treat the high angle cases. In the transverse plane, anchorage loss in the form of the buccal flaring. Suppose कि आप teeth जो है वो buccally flare हो जाएंगे। In the transverse plane, especially हम plan करते हैं when the canine is placed palatally, जो canine palatally placed है and हम उसको buccal move कराना चाह रहे हैं in the normal position, तो what happens? Whenever we will apply the force on the canine to move it buccally, तो वो क्या करेगा, जो उसके adjacent teeth होंगे lateral incisor and premolar, उसको क्या करेगा, lingually move करेगा। उसका reactionary force होगा, मतलब जितना भी हम force apply करेंगे उसका reactionary force will move the lateral incisor and the premolar in the lingual direction। तो उस condition को हम इस तरह preserve करते हैं कि जो एंकर यूनिट होगा उसमें हम नंबर ऑफ टीथ बढ़ा देंगे, मतलब लेटरल इंसाइजर को हम इंगेज कर लेंगे विद द सेंट्रल इंसाइजर, प्रीमोलर को हम इंगेज कर लेंगे विद द मोलर के साथ, मतलब एंकरेज वैल्यू बढ़ा देंगे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द एंकरेज। सो वी हैव टू प्लेन द एंकरेज इन ऑल द 3 प्लेन ऑफ द स्पेस। नाउ एंकरेज प्लानिंग इज ऑलवेज डन एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट प्लानिंग। एट द डे 1 जब आप पेशेंट के रिकॉर्ड्स लेते हैं, डायग्नोसिस करते हैं एंड वी हैव मेड द ट्रीटमेंट प्लान, एट दैट टाइम वी डिसाइड, वी प्लान के इस पेशेंट्स में टाइप ऑफ एंकरेज क्या होगा, कौन कौन से हम एंकरेज मैकेनिक्स इसमें हम यूज कर सकते हैं, एंड देन दैट जो हम प्लानिंग करेंगे दैट इज एन एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। नाउ इन द ऑर्थोडोंटिक्स में जैसे मैंने कहा ना कि जब हम स्ट्रेट वायर अप्लायंस पे आए तो हमने कहा कि जो इम्पोर्टेंट थिंग है इन द स्ट्रेट वायर अप्लायंस दैट इज द ब्रैकेट पोजीशनिंग। स्टैंडर्ड एज वाइज और स्ट्रेट वायर में यही था ना, स्टैंडर्ड एज वाइज को में वायर बेंडिंग इम्पोर्टेंट थी, एंड देन स्ट्रेट वायर अप्लायंस जब इंट्रोड्यूस हुए तो इन द स्ट्रेट वायर अप्लायंस द इम्पोर्टेंट थिंग वाज द ब्रैकेट पोजीशनिंग। ब्रैकेट पोजीशनिंग विल अलाइन द टीथ आपकी नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। The other important thing in the orthodontic that is the anchorage, because अगर आप दो चीजें सीख जाते हैं, ब्रैकेट पोजीशनिंग अगर आपकी आइडियल हो जाए एंड यू लर्न हाउ टू मैनेज द एंकरेज, ठीक है, तो फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज इजी, ठीक है, बिकॉज जो जनरल डेंटिस्ट को जो यूजुअली प्रॉब्लम होता है वो नंबर 1 इज द ब्रैकेट पोजीशनिंग एंड नंबर 2 प्रॉब्लम इज द एंकरेज लॉस। जो भी केसेस जनरल प्रैक्टिशनर से बेसिकली ट्रांसफर होते हैं या हमारे पास आते हैं तो उसमें मेजर जो प्रॉब्लम होता है दैट इज द एंकरेज। सो ट्रीटमेंट ऑफ द एंकरेज लॉस, अगर एक मरतबा एंकरेज लॉस हो जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाएं एंड इट्स वेरी टाइम टेकिंग। सो इट इज बेटर टू ऑलवेज रीइंफोर्स द एंकरेज, नंबर 1, नंबर 2 ऑलवेज मूव द टूथ इंडिविजुअली रादर देन कि आप कहें कि जी हम कंबाइनली सारे टीथ को मूव करेंगे, ठीक है। फॉर अ जनरल प्रैक्टिशनर इट इज बेटर टू ऑलवेज रीइंफोर्स द एंकरेज। वो कैसे रीइंफोर्स करें, मैक्सिला में जो है वो ऑलवेज यूज द टीपीए नेल्स, एक्सट्रैक्शन केस जो भी आप कर रहे हैं ऑलवेज यूज द टीपीए नेल्स, एंड इन द मैंडिबल ऑलवेज यूज द लिंगुअल आर्च। एक ये कॉन्सेप्ट बना लें कि जो भी एंकरेज केस हो उसमें टीपीए नेल्स यूज करें इन द मैक्सिला and lingual arch use करें in the mandible, number 1. Number 2, always move the tooth individually. Suppose canine की हम individual movement करेंगे and then anterior जो incisors होंगे उनकी movement करेंगे। हम जो practitioners से वो क्या करते हैं कि in mass retraction as a whole जो है वो anterior 6 teeth को move करने की कोशिश करते हैं। वो mind में नहीं रखते कि anchorage value इतनी नहीं है। तो ये दो अगर चीजें आप
ऑलवेज आपने केसेस में करेंगे, नंबर 1 reinforce the anchorage, नंबर 2 move the individual the tooth individually, तो उसमें ये होगा कि anchorage loss के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाएंगे। इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। सर जी बेटा। सर रेसिप्रोकल एंकरेज जो आप बता रहे थे ना मिड लाइन डायस्टेमा, वो थोड़ा रिपीट कर दें। एक एंकरेज मैंने बताया आपको मॉडरेट एंकरेज, ठीक है। मॉडरेट एंकरेज में क्या होता है कि 50% स्पेस इज यूटिलाइज्ड बाय द मूविंग यूनिट एंड 50% स्पेस इज यूटिलाइज्ड बाय द जो आपका है एंकर यूनिट, उससे होगा। ऐसे ही दोनों 50% प्रोवाइड करेंगे ना। उसमें आप ये कर सकते हैं कि सपोज करें कि आपके पास ये 2 सेंट्रल इंसाइजर है, ठीक है। आप इस सेंट्रल इंसाइजर पे 50 ग्राम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये 50 ग्राम रिएक्शनरी फोर्स अप्लाई करेगा इस सेंट्रल पे। इन दोनों की मूवमेंट होगी इन दी अपोजिट डायरेक्शन। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। अगर सपोज करें कि आप मॉडरेट एंकरेज ले रहे हैं, इंटीरियर टीथ है और ये पोस्टीरियर टीथ है, हमारे पास स्पेस बीच में है 10 मिलीमीटर और हम चाह रहे हैं कि 5 मिलीमीटर मूवमेंट हो इंटीरियर टीथ की और 5 मिलीमीटर मूवमेंट हो पोस्टीरियर टीथ की, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल फोर्स देंगे। ये एग्जांपल हो जाएगा रेसिप्रोकल का। फोर्स हम ऐसे प्लान करेंगे कि इंटीरियर जाएंगे और पोस्टीरियर आगे आएंगे। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल एंकरेज, या आप उसको सिंपल कहेंगे मॉडरेट एंकरेज जो है। आया समझ? जी सर, थैंक यू। सर ये जो रेसिप्रोकल मोमेंट होगा इंटीरियर और पोस्टीरियर का, तो वो आपने जैसे पहले ही पॉइंट में कहा कि ये इंडिविजुअल होगा, मतलब उस तरफ से भी और इस तरफ से भी, फिर वो स्पेस कवर हो जाएगा। नहीं, इंडिविजुअल का बेटा मैंने ये कहा कि जब भी आप कोई एक्सट्रैक्शन केस करें तो उसमें 2 चीजें हमेशा किया करें। एक चीज ये कि रीइंफोर्स करें एंकरेज को विद द हेल्प ऑफ टीपीएन एंड्स इन द मैक्सिला एंड लिंगुअल आर्च इन द मैंडिबल, नंबर 1। नंबर 2, इंडिविजुअल टूथ मूव कराएं, मतलब केनाइन की मूवमेंट पहले करें फिर इंसाइजर की मूवमेंट करें, ठीक है। तो उससे एडवांटेज ये होगा कि आप एंकरेज लॉस से बच जाएंगे, एंकरेज लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। ये मॉडरेट एंकरेज में मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज मॉडरेट एंकरेज में ये है कि आपके पास जो स्पेस है 50% स्पेस यूटिलाइज्ड होगा बाय द इंटीरियर टीथ एंड 50% बाय द पोस्टीरियर टीथ। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो मॉडरेट एंकरेज है, अगर आप इतने ट्रेंड हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द रेसिप्रोकल फोर्स। ऐसा डिजाइन करें कि वो रेसिप्रोकल फोर्स अप्लाई करें ताकि दोनों एट ए टाइम मूव करें। उसमें ट्रीटमेंट का टाइम कम हो जाएगा ना, टाइम आपका सेव हो जाएगा। ओके जी बेटा, किसी और ने पूछना है? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम होगा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पे, ऑर्थोडोंटिक मैनेजमेंट ऑफ द क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। एंड वो या तो हम कल देखूंगा इंशाल्लाह होगा, या तो फिर ट्यूसडे को। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।